Hello everyone, welcome back to my channel. Now I will summarize the complete chapter The Alien Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. In my previous videos, I have explained the complete chapter. Okay, so let's start the summary of the chapter. This is about Nani Palkhiwala. He was born on January 16, 1920 and he died on December 11, 2002. Nana Boy Nani Ardashir Palkhiwala was an Indian jurist and economist. His name is a byword in India's legal world, a man of many and varied parts. He has crossed with ease the law's narrow confines and has gone beyond it numerous other fields. His life's work, as evidenced by history and his several writings and speeches, bears testimony to his passionate commitment to public causes. He has given generously and unsparingly of himself and his talents to the nation whenever the occasion demanded. So, this is all about the writer. This is an article written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. The Green Revolution started in 1972. First Green Party was formed in New Zealand 25 years ago. So this complete chapter is written by Nani Palkhiwala. It was published in the Indian Express on 24 November 1994. He has this chapter dealt with the declining health of the earth. Now the Green Revolution was started in 1972. First Green Party was formed in New Zealand 25 years ago. The author explains the change in perception of people from materialistic view to comprehensive and ecological view of the world. जो नानी पालखीवाला है वो उन्होंने बताया है कि जो पीपल का परसेप्शन है, जो उनका व्यू है, वो मटीरियलिस्टिक से इकोलॉजिकल में चेंज हो गया है. अब उन्हें पता चल चुका है, उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि जो प्लैनेट अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. दिस मीन्स पीपल आर नाउ गेटिंग कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट. तो अब क्या हो रहा है, वो पीपल जो है कंसर्न है इन्वायरमेंट के बारे में, प्लैनेट के बारे में. उन्हें ये पता चल चुका है कि जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट अर्थ है, उसकी भी एक मेटाबॉलिक नीड्स है. ओके, इन दिस व्यू आवर अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज अ living organism. It is considered as having its own metabolic processes as all living beings have. Okay, so I have explained you that earth is a living organism and it has its own metabolic processes. Then he explains the concept of sustainable development of 1987 meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, we should utilize our natural resources in such a way that we fulfill our present needs as well as conserve them for our future generations. Now the perception is that we consider ourselves as partner and not as a dominant member of this planet. We are partner with millions of species of the planet. जो है कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो 1987 में आया था. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज का पूरा यूज़ करे प्रेजेंट में भी एज वेल एज जो है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव करके रखे, कंजर्व करके रखे, उनको भी सारी जो है रिसोर्सेज मिल सके, वो भी यूटिलाइज कर सकें सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज. अब नानी क्या कहते हैं कि जो परसेप्शन है ह्यूमन बीइंग्स का वो इस तरह से चेंज हो गया है कि वो अर्थ को पार्टनर की तरह कंसिडर कर रहे हैं. वो अब जान चुके हैं कि हम सारे स्पीशीज़ भी जो है हम और सारे स्पीशीज़ पार्टनर की तरह रहते हैं, ना कि कोई एक जो है गवर्न करता है जैसे कि डिक्टेटरशिप में होता है. Mr. Lester R. Brown's thoughtful book, The Global Economic Prospect,
points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forest, grasslands and croplands. These contain virtually all raw materials of industries nowadays running. An unstable utilization of these resources is taking place. This has caused loss of fisheries due to our protein conscious world, creation of barren lands and croplands destroyed. जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है, उन्होंने अपनी बुक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में उन्होंने बताया है कि जो अर्थ की बायोलॉजिकल जो है अर्थ उसकी 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ये जो है देखा जाए तो सारे रॉ मटेरियल्स इन्हीं से ही मिलते हैं हमें, जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है। लेकिन इनका जो है अनसस्टेनेबल जो यूज़ होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी की सारी जो है डिट्रॉइट होती जा रही है, फिशरीज़ कम होती जा रही है, फॉरेस्ट डिसअपेयर हो रहे हैं, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स जो है वो बंजर ज़मीन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। Then the author is concerned about reduction of forest land. It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. The dung which should be used as natural fertilizer is mostly used for fuel. अब जो है ऑथर बहुत ज़्यादा कंसर्न है किसके बारे में, फॉरेस्ट लैंड का जो काटा जा रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड है जो वो काटी जा रही है, तो इसके बारे में ऑथर जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब नानी क्या बता रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है डेजर्ट्स में। जब से ह्यूमन बीइंग्स आए हैं, फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे हैं हमारे द्वारा, और वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, डेजर्ट्स में। फर्दर वो हमें समझाते हैं कि जो काउ डंग है, जो कि फर्टिलाइज़र की तरह, नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है, वो अब क्या होता जा रहा है, फ्यूल की तरह लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। द सॉइल इज़ नॉट गेटिंग नेचुरल फर्टिलाइज़र। 5-fold rate of planting of trees is required to meet the future demand of woods as fuel. अब नानी हमें बता रहे हैं कि ये जो काउ डंग का यूज़ होता जा रहा है फ्यूल की तरह, उससे क्या होता जा रहा है, नेचुरल फर्टिलाइज़र ही नहीं मिल पा रहा है सॉइल को, और जो है हमें 5 टाइम्स प्लांटिंग इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ट्रीज़ की, ताकि हम आगे फ्यूचर डिमांड को फुलफ़िल कर सकें जो हमें फ्यूल के लिए चाहिए, जो हमें लकड़ियाँ चाहिए फ्यूल के लिए, उसकी अगर हमें डिमांड पूरी करनी है तो हमें क्या करना होगा, 5 टाइम्स जो है ट्रीज़ लगाने होंगे। Then author has referred to Article 48A of the Constitution of India where it is stated states should protect and improve forests and wildlife, but as many other laws, this is also not enforced properly. Then author has referred to a parliamentary committee report which states decline of forests at the rate of 3.7 million acres per year. अब जो है वो ऑथर है ना बता रहे हैं कि जो आर्टिकल 48A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बता रहा है कि हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाना है, लेकिन जैसे कि बाकी अदर लॉज इन्फोर्स नहीं होते हैं, वैसे ही ये आर्टिकल 48A भी प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाया। उसके बाद जो है ऑथर बता रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की कमेटी थी, उन्होंने ये बताया था कि जो फॉरेस्ट है उनका डिक्लाइन इतनी तेज़ी से होता जा रहा है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स पर ईयर। एक साल में 3.7 मिलियन एकर्स से इनका डिक्लाइन होता जा रहा है। United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. Now अब नानी बता रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उसने बताया है कि जो है अर्थ वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है, इतना ज़्यादा डिप्लीट हो रही है उसके रिसोर्सेज कि वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। और ये जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने जो है 88 कंट्रीज़ को इन्वेस्टिगेट किया है, जिससे उन्हें ये रिपोर्ट मिली है।
Human population has been rising at very higher rate. Development is the most appropriate solution of human beings' day-to-day problems. But with such a high rate of population, development is difficult to take place. Now अब नानी क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि डेवलपमेंट ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर हमें डेवलपमेंट पॉसिबल करना है तो हमें ये सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ये ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो जो है डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ थिंकिंग बिटवीन पुअर अनएजुकेटेड. Because of such thoughts, poor are getting poorer. A proper family planning is required to cope up the situation. There is a need to go for population control. So अब नानी क्या कह रहे हैं कि जो poor uneducated जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन को जन्म देते जा रहे हैं, मोर एंड मोर जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, वो पुअर से पुअर होते जा रहे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इसको जो है कोप करने के लिए, सिचुएशन को सुधारने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग चाहिए इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। Author at this point again repeat the positive change in view regarding ecology among people. Industries also need to take responsibility for a good ecosystem and should be good at environmental performances. All we have is a life tenancy. We need to preserve it for our future generations. सो अब इसी पॉइंट पे ऑथर वापस से वही बता रहे हैं कि जो हमारा चेंज, जो पॉजिटिव चेंज हुआ है ह्यूमन बींग्स में, किसके रिगार्डिंग कि हम जो है इकोलॉजिकल व्यू में चेंज, जो चेंज है वो मटीरियलिस्टिक से क्या हो चुका है, इकोलॉजिकल व्यू में चेंज हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ है उनको भी समझना होगा कि उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फिशरीज़, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स और जो क्रॉपलैंड्स और ग्रासलैंड्स हैं वो मेन रॉ मटेरियल्स है इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इंडस्ट्री की जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है क्योंकि उन्हें भी जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज़ करना होगा। अब हमें क्या चाहिए कि जो है हम अपने इन्वायरमेंट और अपने प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करके रखें और उन्हें एक अच्छे से अच्छा प्लैनेट दे सकें, या तो एज इट इज़ प्लैनेट दें या फिर इस प्लैनेट से भी हम अच्छा उनको प्लैनेट दे सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। थैंक यू।